बजट तो ओवरऑल जिसको कहते हैं स्टेटस कोइस्ट बजट है. इसमें ट्विकिंग किया गया है. सर्टेन थिंग्स हैव बीन डन व्हिच इज एडवर्सली impacting the industries and the general taxpayer. In fact, the better thing would have been that they would have addressed the smaller taxpayer also. Like I'll tell you one or two points which the government has been doing consistently over a period of 4 or 5 years is instead of are generally used in order to escape the dragnets of port, because when you are introducing penalty for any default, the penalty has a rider. The rider is mens rea, the intent you have to prove, and in that case most of the time the government fails. So this is the reason that they are making additional, like I was just walking into this room when the penalty, some particular part of it, I think you will guide me. The 100% additional tax they have introduced. Already you are charging 34% tax, and making 100% means what? You are charging at the rate of 68%. So when you charge 100% tax, what is the relief you are giving? So this sort of thing the government should avoid, and particularly when the capital is migrating from India, the tax department is considered to be one of the biggest deterrent to any foreign investment. Any foreign investment. I have been interacting with different countries, taxpayers and all, and I know. So I'm not saying that this is a bad budget, but this is a budget which they could have addressed in a more humane manner. That's what I was. लेकिन इसमें एक चीज ये बताएं कि मार्केट में ऐसा क्या इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी मैं देख रहा हूं कि सेंसेक्स 2300 पॉइंट गिर गया. वो बहुत बड़ी गिरावट है. मतलब इतिहास में पहली बार शायद हो भी रहा है कि मार्केट जो है शेयर मार्केट संडे को खुल रही है, और संडे को खुलने के बाद इतनी बड़ी गिरावट किसी भी बजट के बाद आई है. बजट देखिए, आप पहली बात तो सेंसेक्स जब गिरती है तो सेंसेक्स इज सेंसिटिव टू ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बजट, and one of the most important budget which impacts the smaller and the bigger people is the taxation. All over the world, I'm telling you, I have been interacting with, because I'm visiting in case of World Bank and IMF things and all, and I'm there with them. The tax is the biggest deterrent. Whatever you have given, people are not very much interested. Only the small segment of it. Like suppose if the rice export, those who are involved in rice export only will know. I will not know. But so far as taxation is concerned, it impacts everybody. And that taxation, nothing has been given. You are slowly adding to the burden of the tax in terms of the amount and in terms of complexities. Where have you introduced? You have introduced 100% this, new regime this, old regime this. All these things when you are doing it. That is what I'm saying. Past na. So that is what I'm saying. The सेंसेक्स का गिरना तो लाजमी है. सेंसेक्स गिरेगा. आपने जो टैक्स स्ट्रक्चर को आप देखिए ना, क्या किया इन्होंने. क्या किया है टैक्स को? कम्प्लेक्स बनाया है. Not many people will understand it. And those who will understand it in negative way. क्या मिला है आपको टैक्स में? क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है. कुछ भी नहीं मिला है. और टैक्स का आप जब तक सोचेंगे नहीं. दूसरा है कि it is long time that every time they are indulging in this percentage and that percentage. The biggest thing for the whole both tax department is you have to introduce ruthlessly the administrative reforms. Administrative reforms you have to introduce. The officers are creating problems. I can give you 100 examples. Why this is not being addressed? That is what I'm saying. It's a bad thing. I do not know. I'm not writing to the finance minister and all. Otherwise, I could have given the case, specific cases. People know it. People know it, and people also know it. कि raising this issue before the authority will cut no ice. Cut no ice. Okay. तो अभी आप सुन रहे थे कि ए.के. सिन्हा जी को, और जो हमारे पूर्व चीफ कमिश्नर हैं आईटी के. अब हम राजीव रंजन जी से समझते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को. और राजीव रंजन जी चीफ सेक्रेटरी हैं फॉर्मर.
जी धन्यवाद। मैं पहले जीएसटी भी देखता था, जीएसटी काउंसिल में था, स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू के तौर पे। तो मैंने देखा इस बजट में इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिफॉर्मिस्ट मेजर्स व्हिच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, it is in line with the thinking of how India has to be more competitive, चाहे वो export competitiveness में हो, because given the global headwinds, अभी जो आप जानते हैं कि वैश्विक तौर पे जो अनिश्चितताएं हैं उसको देखते हुए किस तरीके से हम लोग अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं। आप रुपी डॉलर का देखेंगे तो उसमें भी बहुत सी बातें आती हैं समझने की। तो जब तक हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं हो, अपने इकोनॉमी को नहीं बनाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। बजट इज वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर वी गिव अ सिग्नल, बट गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डू दिस अक्रॉस मेनी मेनी वेज। जैसा कि आज वित्त मंत्री बता रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन घटा के 2019 में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था। नाउ उसी के क्रम में आज और भी उन्होंने कहा कि सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर्स, क्योंकि हमको मालूम है कि रेड टेप बहुत ज़्यादा है और कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग अट्रैक्ट करेंगे तो इंडिया हैज़ टू बी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। सो देयर हैव बीन मेनी अनाउंसमेंट्स ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेसेस, चाहे वो कस्टम साइड में हो, एंड बहुत सारी चीज़ें बताई गई। सो वो मैं कहूँगा कि दे आर वेरी वेलकम स्टेप्स। देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर पीपल, यू नो, जैसे बैगेज अलाउंस कम हुआ है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, ड्यूटी फॉर इनपुट्स, किस तरह से जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बढ़ाएंगे, जो इनपुट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं फिर री एक्सपोर्ट के लिए, इन सब चीज़ों पे उसी तरह से काफ़ी रिलीफ भी मिला है। द डिटेल्स विल बी कमिंग आउट। तो मैं कहूँगा कि इट हैज़ बीन पॉपुलिस्ट टू दैट एक्सटेंट that we have given something for the common people also, but at the same time the expectation is much more, because we are looking at a roadmap for Viksit Bharat. We are looking at how India has to be competitive, and now we are aiming to become the third largest economy, but we also need to improve the per capita income, make sure that the growth is inclusive, and for that what are the things that government has to do is indicated ऑन द फाइनेंस साइड इन दिस बजट। तो मैं ये कहूँगा कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, 1.5 घंटे के भाषण में आप देखा होगा, मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक जो 4.3 फिस्कल डेफिसिट का टारगेट समझते हुए और कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बने, इस बात को ध्यान दिया गया है। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज वी विल फील कि टैरिफ जो बहुत ज़्यादा लगाया गया है उसके लिए किस तरह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव होने के लिए। उसके लिए ये बजट जो है बहुत सारे स्टेप्स कह रहा है और टू दैट एक्सटेंट इट्स वेलकम। धन्यवाद। यानी कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। और नवीन मानिक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आज जो बजट आया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने हर एक सेक्टर को, एवरी सेक्टर को जो है उन्होंने टच करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ रिलीफ देने की मतलब उनका प्रयास रहा है। तो हर एक सेक्टर को उन्होंने टच किया है। इनकम टैक्स में एक दो इन्होंने थोड़े रिलीफ दिए हैं कि जैसे रिवाइज टैक्स का इन्होंने टाइम एक्सटेंड जो 31 दिसंबर तक था वो 31 मार्च तक जो है कर दिया। तो और एक उम्मीद थी कि एसटीटी टैक्स शायद खत्म करेंगे, क्योंकि पीछे कैपिटल लास्ट बजट में कैपिटल गेन टैक्स जो है बढ़ा दिए थे, लेकिन वो एसटीटी कम होने की बजाय बढ़ा दिया गया है। और बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करने से कुछ नहीं होगा। जैसे जो है सिन्हा साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत जरूरी है। आप खाली ऑनलाइन सिस्टम कर देंगे और ये बोल देंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा नहीं है। आज भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, तो बहुत हरासमेंट भी होती है टैक्स पेयर को भी और जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसको भी। और दूसरा इसके अलावा
एक वेलकम स्टेप ये कि जैसे रंजन साहब ने कहा कि जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, वो 4.3 पे, ये तो क्या गवर्नमेंट की अचीवमेंट है कि ईयर बाय ईयर जो है इसको कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और नेक्स्ट टारगेट जो उन्होंने 4.3 का ही रखा है। इसके अलावा एक जो अच्छा स्टेप कहा सकता है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत सारे नोटिस लोगों को इशू हुए हैं जिसमें फॉरेन एसेट जो है डिस्क्लोज नहीं की गई है। वो उनकी कहीं जगह अवेयरनेस की कमी भी है। जैसे कईयों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट खोल दिए, उनके लिए फ्लैट ले लिया, तो उनको कई बार पता नहीं होता कि हमें डिस्क्लोज करना है, या उन्होंने बैंक अकाउंट खोल के उसमें जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए, बाद में बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज हुए, तो उसका उनको कई बार ध्यान नहीं रहता कि हमें वो भी डिस्क्लोज करना है। तो काफी सारे नोटिस जो है इशू हुए हैं। बाकी ये वेलकम स्टेप है उसका गवर्नमेंट का कि उन्होंने फिर इसमें एक वो दिया, रिलीफ दिया है कि आप इसको डिस्क्लोज अभी भी कर लीजिए, नहीं तो जो है पेनल्टी, जो भी प्रोसिक्यूशन वगैरह है वो होंगे। बाकी दूसरा, पेनल्टी को हटा के एडिशनल टैक्स में ट्रांसफर किया, वो सिन्हा साहब ने बताया कैसे इन्होंने, मतलब पेनल्टी ये दिखाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम पेनल्टी कम कर रहे हैं, और उसको एडिशनल टैक्स में जाके वहां कम करके वहां उन्होंने ऐड कर दिया। तो ओवरऑल बजट जो है टैक्सेशन का इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है जो इन्होंने रिलीफ दिया। बाकी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रिलीफ दे दिया था। आज भी मतलब लास्ट टाइम जो रिलीफ दिया न्यू रिजीम में 24 लाख की इनकम के ऊपर ओनली 3 लाख रुपए टैक्स है, इट्स कम टू ओनली 12.5%। ये बहुत बड़ा मेजर रिलीफ था। मतलब 12.5% इनकम टैक्स का रेट बहुत कम है। आज ये जीएसटी का रेट देखिए, वो उससे ज्यादा है। लेकिन इस बजट में टैक्सेशन का कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। बाकी ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अर्चना जी, जैसे जब बात हो रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और आज की तारीख में हम सिचुएशन देखें, बिल्कुल बिल्कुल हम वापस आ रहे हैं। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो अभी महीने अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग हमारे देश से, लोग जो व्यापारी हैं या जो HNIs हैं, वो देश से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर जाते हैं। तो ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए जिससे वो यहीं के यहीं रहे? क्योंकि जब यहाँ से कोई HNI जाता है तो सिर्फ अकेले नहीं जा रहा है, वो अपनी वेल्थ भी लेके जा रहा है, और वो अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहा है जो हमारे देश को मिल सकती थी। वो देश की जगह वो जिस कंट्री में जा रहा है वो वहां उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो हमें इन लोगों को रोकने के लिए और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे या फ्यूचर में करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। जो HNI या जो बिजनेसमैन है, जो जो जिनमें कैलिबर है और जो बाहर जा रहे हैं, और उनको काफी, और उनको मतलब कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि एक तो जैसे सिन्हा साहब, नवीन जी, इन्होंने बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, बिजनेस वगैरह करने के लिए इतनी हरासमेंट होती है। कोई भी GST नंबर अप्लाई करना हो या रिटर्न फाइल करना हो, इतने नोटिसेस इतने सब आते हैं, तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं है और फॉलो भी नहीं करते लोग, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यहाँ पर छोड़ के हम कहीं बाहर ही जाएं। अगर आप वैसे बात करें तो दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटीज में रहने लायक प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं है। पोल्यूशन देख लो, और खाना पीना वो तो है ही, और उनको बिजनेस करने की उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। इन सबको रोकने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो उनके अपने ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको पहले अवेयर करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के लिए आप आगे आएँ और उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें, ना कि उनको हरास करें, जिससे कि वो दूसरे कंट्री में ना जाए जिससे कि वो दूसरे कंट्री में ना जाए, और ब्रेन ड्रेन भी ना हो। हाँ, ये माइक अंकित जी तक पहुंचाइए। तो अंकित जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है बजट में? पंकज, हाँ माफी चाहता हूँ पंकज। तो पंकज, किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इस बजट को देखें कि, और विशेषकर अगर हम अपनी राइस इंडस्ट्री के लिए देखें, क्योंकि हम IRF के हाउस में बैठे हुए हैं, तो IRF के लिए या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए या राइस मिलर्स के लिए इस बजट में क्या क्या चीजें हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल सकता है? हेलो सर, वैसे तो इसमें बजट में राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिससे कि इंडस्ट्री को देखा जाए कि बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चली जाएगी या फ्यूचर में बड़ा ही अच्छा ग्रो कर जाएगी। गवर्नमेंट को तो इस समय सबसे ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही बनना चाहिए कि किस तरह से हम लोग कंट्री के अंदर डॉलर करेंसीज को जो इनफ्लो करके लाए। उसके लिए इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा
कि सबसे पहले तो जो बिजनेस हाउसेज है उनको इतने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि वो आप एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट आपके साथ है। ये गवर्नमेंट इस समय ऐसे कर रही है कि आप बिजनेस तो करो, गवर्नमेंट को टैक्स भी दो, कंप्लायंस हम देख लेंगे, आपको पेनल्टी हम लगा देंगे, कंप्लायंस बर्डन आपके ऊपर बढ़ा देंगे। इसमें मतलब आप एक्सपोर्ट के रिलेशन में या कोई भी बिजनेस है, कोई भी सेगमेंट के अंदर बात करें, सब में यही सिचुएशन चल रही है कि आप बिजनेस करो, बाकी हम देख लेंगे, लेकिन कंप्लायंस और ये सब अननेसेसरी इतने बर्डन है कि जब एक इंडस्ट्री में बैठ के बंदा उस एक्सपोर्ट या कोई भी ओरिएंटेड यूनिट में जाता है तो कहता है कि आज की डेट में यहाँ से बिजनेस अच्छा करना है तो मैं बाहर ही चले जाता हूँ, जहाँ पे मुझे लेस कंप्लायंस है, लेस टैक्स रेट है। आप सिर्फ टैक्स रेट देते हो, जैसे सर लोगों ने बोला कि टैक्स के बाद एडिशनल के नाम पे आप पेनल्टी की रेट पे एडिशनल टैक्स लगा देते हो, तो अननेसेसरी वो बंदा फिर उसी से डरने लगता है। अब एक चीज और बताइए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो आप चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आती हैं और यहाँ से ये अननेसेसरी हमें परेशान किया जाता है सरकार की तरफ? उसके लिए सर इनको सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के बंदों को सही करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में इतनी लिटिगेशन है जो अननेसेसरी इश्यूज के ऊपर भी वो लोग क्रिएट करने लगे हैं कि कोई भी अगर उनको एआई बेस्ड नोटिस होती है, सारी सिस्टम जनरेटेड है, अगर सिस्टम ने कोई चीज को नहीं पिक किया तो वो आज की डेट में सीधे एसएससी को नोटिस देकर बुला देती है कि आप भैया ये फैक्ट एक्सप्लेन करिए, फैक्ट। उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है अननेसेसरी उसका भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है और जो अपना एसएससी है उसका भी टाइम इन्वॉल्व। तो मतलब ओवरऑल यही कहा जाएगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो अच्छा ले रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो बहुत इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी नोटिस है सारी जनरल बेस्ड पे बन जाती हैं। एंड में क्या होता है, कंक्लूजन कुछ निकलता नहीं है, फिर उसके अंदर वो अननेसेसरी भी परेशान हुआ, डिपार्टमेंट भी परेशान हुआ। ओके, क्लाइंट भी परेशान हो रहा है, डिपार्टमेंट भी परेशान हो रहा है और साथ के साथ प्रोफेशनल्स भी परेशान हो रहे हैं। जी, आप इस बजट को अगर हम ओवर बात करें, आम जनता को इसमें क्या मिल रहा है? सर मुझे लगता है कि आम जनता को इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात करूं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि स्लैब रेट में कुछ बेनिफिट मिलेगा। स्लैब रेट में मानो कि हम सोच रहे थे कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा बेनिफिट दिया था, 12,75,000 तक टैक्स एग्जेम्प्ट था, तो लोग सोच रहे थे कि अब की बार थोड़ा और एग्जेम्पशन मिल जाएगा, करीब 13 लाख तक हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो उसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में तकरीबन सारे लोग इन्वॉल्व हैं। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा आज इसलिए गिरी है, जो मेरा मानना है कि शेयर मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, जो पिछले साल शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन पे लॉस, जो टैक्स रेट बढ़ाया था गवर्नमेंट ने 12.5% कर दिया था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15 से 20% कर दिया था, उस पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई भी इनिशिएटिव नहीं किया। इवन एसटीटी जो है वो भी ज्यादा कर दिया है। तो हर तरीके की मार एक शेयर होल्डर पर पड़ रही है आज, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन का टैक्स उनको पे करना पड़ रहा है। उनको अगर मानेंगे आप, एसटीटी भी उन पे लग रहा है कहीं ना कहीं से। इवन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो भी उन्हीं पे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आम जनता को आज कोई इस टैक्स से, इस बजट से ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्टर की बात करूं, एक्सपोर्टर्स में देखो, क्योंकि आज ट्रंप ने कहीं ना कहीं इंडिया का, मेरे हिसाब से इंडिया का 75 to 80 बिलियन यूएसडी का कहीं ना कहीं इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो 50% टैरिफ ट्रम्प जी के द्वारा लगाया गया है, उसको कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट रिलीफ देगी, या तो वो हो सकता है रोड टैप, हम लोग एक्सपेक्टेशन देख रहे थे कि 0.3% जो रोड टैप है उसको बढ़ा के 0.39 कर दिया जाए, जीएसटी रिफंड साफ कर दिया जाए। तो ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्टर्स को कहीं तो रिलीफ मिले, लेकिन उस तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो सबको पता है कि लेबर क्लास में इम्पैक्ट पड़ेगा, लेबर क्लास में इम्पैक्ट पड़ेगा तो कंजम्पशन कम करेगा और ओवरऑल साइकिल हमारी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्टर्स को भी, आम जनता को बेनिफिट मिला इससे। साथ में अगर मैं बात करूं किसानों की, हम बात कर ले तो किसानों में भी जो प्रधानमंत्री किसान निधि किसान योजना थी, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 6,000 से 8,000 रुपये साल के दिए जाते हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, उसमें एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, एक कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर अभी एक 15% का टैक्स स्लैब इन्होंने अनाउंस किया है अभी, जो पहले 22% था स्पेशल कैटेगरी में, उसको बढ़ा के उन्होंने कम कर दिया है, 15% कर दिया है कुछ कैटेगरीज के लिए, जो भी, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है, इसको हम कह सकते हैं। साथ में अगर रिवाइज रिटर्न का सर ने भी अभी किया था, बताया था, रिवाइज रिटर्न का 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जो टैक्स ऑडिट लायबिलिटी होती थी हमारी, जो फीस टैक्स पेनल्टी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया फीस के अंदर।
तो वो उन्होंने फीस के अंदर इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फीस तो मैंडेटरी पे करनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी कभी लगती थी कभी नहीं लगती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये वैसे इन्वॉल्व कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि कोई खास बेनिफिट किसी भी तरीके का इसमें बजट में मिला है किसी को भी। सोलर सिस्टम के लिए भी मैं देख रहा था, अगर हम डिजिटलाइज की बात करें, एआई की बात करें, तो उसको लेकर गवर्नमेंट थोड़ी अवेयर है। नए डाटा सेंटर और सेफ हार्बर रूल्स जो हम देख रहे थे, उसमें इन्होंने प्रमोट किया है कि उसके अंदर हम टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, टैक्स हॉलीडेज भी इन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन आम जनता जिससे कनेक्ट है उसमें कोई बेनिफिट ज़्यादा है नहीं। आम जनता के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जी विनोद कौल जी, आपके सेक्टर यानी कि हम अगर राइस एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमें कहाँ बेनिफिट है, कि मतलब मिलर्स को बेनिफिट मिल रहा है, एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल रहा है, या फार्मर्स को इसमें बेनिफिट कहीं मिलेगा? जी, मेरा ये मानना है कि इस बजट में स्पेसिफिक कुछ भी राइस सेक्टर के लिए नहीं मिला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट सबवेंशन में कुछ बेनिफिट होगा, रॉड टेप में कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन आज की डेट में है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, उसके लिए ये इस तरह के बेनिफिट्स की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वो नहीं मिला है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि राइस पे कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिले हैं। दूसरा मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए रुपी की स्टेबिलिटी के बारे में भी बजट में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्योंकि रुपी में जिस तरह से डिवैल्यूएशन होता जा रहा है, वो ठीक है, ट्रेड के लिए शायद बेनिफिशियल हो, लेकिन अल्टीमेटली इसकी स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग जी से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि जो हमने डिमांड रखी थी, यानी कि आईआरएफ ने डिमांड रखी थी, तो अगर वो पूरी हो जाती तो इंडस्ट्री को क्या मिलता, और आज की तारीख में हम कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आज ये बजट पेश किया गया और पहले से ये बजट आप देखेंगे पिछले 9 दफा निर्मला सीतारमन जी ने बजट किया है, और ये 9वां बजट था जिसके अंदर ये शायद मैं कहूँगा पिछले बजटों के मुकाबले छोटा बजट था। क्योंकि इससे पहले जब लास्ट ईयर आप बजट देखेंगे, 1 घंटा 47 मिनट का बजट चला था। कुछ जितने भी बजट हुए हैं 1.5 घंटा से ऊपर चले हैं, और आज का बजट 1 घंटे के अंदर खत्म हुआ है। तो उसके अंदर इन्होंने पूरे सेक्टर्स को हो सकता है कि कवर अभी ना किया हो और वो लेटर स्टेज पर करें। जैसे कुछ रोड टैप की कुछ स्कीमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले दी थी, जिसके अंदर 50 लाख रुपए तक के रिफॉर्म दिए गए, किया गया, पर जो क्योंकि जो मार्केट रिएक्ट करती है, जैसा कि हम आज देखें शेयर मार्केट रिएक्ट कर रही है, इमीडिएटली 2,500 पॉइंट डाउन जाके नीचे आके रिकवरी करके 1,000 पॉइंट पर आ गई, और हो सकता है कल तक ये रिकवर भी कर जाए। क्योंकि जैसा अभी गवर्नमेंट के साथ देखा गया है कि वो धीरे धीरे नए रिफॉर्म ला रहे हैं, और इसके अंदर धीरे इस बजट के अंदर जरूरी नहीं कि हर चीज बजट के अंदर ही डिक्लेयर की जाए, तो धीरे से उसको समझेंगे और लेकर आएंगे। जैसे हमारी फेडरेशन ने, आईआरईएफ ने एक सजेशन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि राइस इंडस्ट्री के लिए, शिपिंग के लिए बेनिफिट देना चाहिए, फ्रेट सब्सिडी देनी चाहिए, या सबवेंशन जो है, जो राइस के ऊपर आज 1% की है, तो उसको बढ़ाकर यदि 3% कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जितना एक्सपोर्टर से ज्यादा कर पाएंगे। जो हम राइस का एक्सपोर्ट आज 172 कंट्री में करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो इसको बढ़ाकर हम 100% जितनी भी कंट्री हैं, जैसे ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड को हम कर ही रहे हैं, पर अपने वॉल्यूम को जो 40% से बढ़ाकर 60% तक ले जा सकते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स में इतनी कैपेसिटी हो, बहुत लो मार्जिन के ऊपर एमएसएमई को इससे बेनिफिट मिलेगा। 3% का यदि इसके अंदर उनको मेंशन कर दिया जाए, तो उसी के ऊपर वो अपना पूरा बिजनेस चला लेंगे। थोड़ा जो बैंकों के अंदर है, बैंक आज के दिन बहुत लिबरल नहीं है इंडिया के अंदर, या वर्ल्ड में कह लीजिए। आज अकाउंट खोलना होता है किसी को, इसको बजट में लाना चाहिए, बहुत इजी करें। एलसी की पेमेंट्स हैं, उसको इजीली बैंक को फोर्सली किया जाए कि जो भी एलसी बाहर से आ रही है उसको इमीडिएटली काम करे। या छोटा एक्सपोर्टर है, उसको भी आज मार्जिन है। आप रुपी डॉलर की बात करें, छोटा व्यापारी होता है वो उसके अंदर काम नहीं कर सकता, स्टार्टअप है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उससे 20 से 25 पैसे 30 पैसे मार्जिन बैंक चार्ज करते हैं। तो उनको फोर्सफुली किया जाए कि एक्सपोर्टर से 2 पैसे से ज्यादा कोई भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता, जो भी प्रीविलिंग रेट चल रहे हो डॉलर रुपी के। इसके अलावा
इसके जो भी और चार्जेस हैं, चाहे छोटा एक्सपोर्टर है चाहे बड़ा एक्सपोर्टर, उसको इक्वल किया जाए तो हमारा जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर है वो आगे बढ़ पाएगा या वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हम बड़े की तरफ ही क्यों देखें कि बड़ा ही यदि बेनिफिट ले रहा है, छोटे को भी वही सेम बेनिफिट दिया जाए तो जिससे भी वो हाथ पैर मारे और आगे काम करे। तो हमारा यही है फेडरेशन की तरफ से कि बजट के अंदर जो चीजें रह गई हम रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को करेंगे कि इसके अंदर और ज्यादा बेनिफिट्स दें। और जो रह गई हैं चीजें, क्योंकि इतना बड़ा बजट होता है, हिंदुस्तान का कोई छोटा बजट नहीं है। आज हम वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, जो आज नंबर 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2047 का विजन है प्रधानमंत्री जी का, हम उसको लेकर चल रहे हैं। उसको करने के लिए तो धीरे धीरे रिफॉर्म, ये बजट तो एक दिन का फिक्स है, पर आई थिंक डेली एक बजट की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नए रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जिससे कि अप्रिशिएट करेंगे। अभी इस बजट के अंदर राइस के अंदर बहुत ज्यादा हमें संभावनाएं थी, कुछ ना कुछ होगा एग्रीकल्चर के लिए, पर जरूर कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और नया सुनने को मिलेगा। और जैसे नए काफी एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, AK सिन्हा जी बैठे हैं, अपने पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, राजू रंजन जी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, GST, हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिस्टर मनिक तालिया और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। सो सब अपनी अपनी एक्सपर्ट राय रखेंगे और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अच्छे रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। 2047 का विजन जरूर पूरा होगा। 2047 का विजन जरूर पूरा होगा। देवगढ़ जी, आप से एक सवाल ये है, मतलब बजट को भी थोड़ा सा बताइए, समझाइए कि आप इसको कैसे समझ रहे हैं। और साथ के साथ एक एडिशनल सवाल है कि हमारे देश में पिछले काफी समय से FDIs नहीं आ रही हैं, उसके पीछे सरकार कहाँ लैग कर रही है? सबसे पहले तो मैं बजट पे कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा बिटर स्वीट बजट था, विच हैज लेफ्ट अस वांटिंग मोर। बजट से काफी उम्मीदें थी एक्सपोर्ट सेक्टर को। जैसे राइस का सेक्टर है वो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है। जिस समय सरकार ने भी आज थोड़ा सा हिंट दिया कि जैसे ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक क्योस मचा हुआ है, हर देश जो शक्तिशाली देश है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी देशों पे दबाव डाल रहा है। ऐसे समय में बहुत जरूरी था कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जैसे चावल एक फूड स्टेपल आइटम है जो हम 172 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत का एक नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है क्योंकि कई देश हमारे चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चावल अपना भारत एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो कई देश मुसीबत में आ जाएंगे। ये भारत को एक डिप्लोमेटिक लेवरेज देता है और भारत की ग्लोबल शक्ति को बढ़ाता है। इस बजट में हमें कई उम्मीदें थी कि राइस सेक्टर के लिए कई नई चीजें लाई जाएगी। इस सेक्टर को जो महत्वपूर्णता या जो उसको इंपॉर्टेंस की जरूरत है वो इंपॉर्टेंस देने के लिए कई मेजर्स दिए जाएंगे। सरकार ने कुछ मेजर्स तो इसके अंदर लेके आए जो सेक्टर को इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगे। कुछ सरकार ने कुछ फ्रेमवर्क भी बनाए जिन फ्रेमवर्क को आने वाले समय में इस्तेमाल करा जा सकता है। जैसे सरकार ने कहा कि जो MSMEs है, अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू MSMEs की प्रोक्योरमेंट करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो राइस सेक्टर है उसमें काफी भारी मात्रा के अंदर MSMEs मौजूद है। काफी सरकारी एजेंसीज चावल का प्रोक्योरमेंट करती है और भी फूड आइटम्स का प्रोक्योरमेंट करती है। तो ट्रेड्स पोर्टल के थ्रू ये होने से उनको पेमेंट एश्योरेंस भी होगी और उनको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे। दूसरा, उन्होंने ये अनाउंस करा कि सूरत के थ्रू एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरत जो है वो गांधीधाम और कांडला पोर्ट के नजदीक है। कांडला पोर्ट से भारत का लगभग 30 से 40% एक्सपोर्ट वॉल्यूम कांडला पोर्ट के थ्रू है। तो ये जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सूरत तक बनाया जाएगा तो नॉर्थ इंडिया का जो भी फूड प्रोड्यूस है उसको कांडला तक जाने में भी आसानी होगी, उसके अंदर भी उसका कॉस्ट कम होगा। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर इस मेजर का भी हमें फायदा मिलेगा। एक उन्होंने ये बोला कि कोकोनट, कोकुआ और कैश्यू और कई इस तरीके के कोस्टल आइटम्स की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए भी एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उनकी हाई वैल्यू वैरायटीज को प्रमोट करने के लिए सरकार यूथ को एंगेज करने के लिए कई तरीके के नए मेजर्स लेके आएगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि राइस सेक्टर को इन नए प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड करा गया है या नहीं करा गया है, बट जो
बजट में अनाउंसमेंट हुआ तो उससे ये उम्मीद है कि अभी तक राइस की हाई वैल्यू वेराइटीज को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, पर क्योंकि एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है तो आने वाले समय में हमारी संस्था इस फ्रेमवर्क के ऊपर सरकार के साथ वर्क करेगी, जिस वजह से इन हाई वैल्यू बासमती वेराइटीज, नॉन बासमती राइस वेराइटीज और जीआई वेराइटीज को भी इस फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करा जाए। एक और जो लास्ट मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगा, वो है आपका भारत विस्तार के ऊपर। भारत विस्तार का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसके अंदर एग्री स्टैक, एआई और आईसीएआर के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को यूज करा जाएगा टू इंक्रीज फार्मिंग प्रोडक्टिविटी। हमने ये देखा कि भारत के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी पैदावार होती है कई एग्जॉटिक वेराइटीज की। इन एग्जॉटिक वेराइटीज की काफी भारी डिमांड भी है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, पर क्योंकि इनका प्रोडक्शन स्केलेबल नहीं हो पाया है अभी तक और इनके ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म्स बहुत इस्टेब्लिश नहीं है, जिस वजह से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अभी तक हम इनको मेन स्ट्रीम सेल्स के अंदर नहीं ला पाए हैं। पर भारत विस्तार जैसे मेजर्स की वजह से इनके ऊपर काफी वर्क हो सकेगा और आने वाले समय में जो ये एग्जॉटिक वेराइटीज है इनका एक्सपोर्ट की बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे मौजूद है। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि एफआईआई के आउटफ्लोज क्यों हो रहे हैं, क्यों इनफ्लोज इंडिया भारत के अंदर नहीं आ रहे, देखिए ये एक बहुत ही चिंताजनक क्वेश्चन है। आपने ये देखा हो कि पिछले एक साल के अंदर भारत की जो करेंसी है वो डॉलर के प्रति लगभग 6.5% डिप्रिशिएट करी है, पर इससे महत्वपूर्ण पाउंड के प्रति 14.5% डिप्रिशिएट करी है और यूरो के प्रति 22% डिप्रिशिएट करी है। भारत में आज हम एवरेज में अगर इंटरेस्ट रेट देखें या अपनी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो इन सब ने 10% से कम की रिटर्न जनरेट करी है पिछले एक साल के अंदर। इसका मतलब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत में पैसा लगाया है तो उसने नेट में 10% रिटर्न के बावजूद भी लॉस करा है। तो ये करेंसी की इंस्टेबिलिटी, मार्केट की अंडर परफॉर्मेंस और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल ना होना एफआईआई की इनफ्लोज कम होने का महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है। तो आने वाले समय में आज ही मैंने सुबह इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करी कि डिपॉजिट के ऊपर भी जो इनकम है उसको इक्विटीज के एट पार लाया जाए, कि अगर कोई व्यक्ति डिपॉजिट्स के अंदर 2 साल से ज्यादा पैसे रखता है तो उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की तरह की एक रिजीम में लाया जाए, क्योंकि जब ये मेजर्स लाए गए थे तब उस टाइम इक्विटी मार्केट इतनी डेवलप नहीं थी। तो आज के समय में बैंक्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से वो डिपॉजिट्स को होल्ड कर पाए अपने पास। तो कई कॉम्प्लेक्स कारण है जिस वजह से सरकार इस पे काफी वर्क कर सकती थी इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, बट कोई नहीं, हमारा काम जारी रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि शायद इस साल जो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई वो अगले साल पूरी होगी। जी सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में इसलिए कह रहा था कि इट इज इंटीग्रेटेड दैट विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। जो आप बोल रहे हैं कि नेट आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, मैं भी उसको वॉच कर रहा हूँ विद सर्टेन सेंस ऑफ कंस्टर्नेशन। क्या रीजन है आप देखिए, ये बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए, व्हाटएवर इट इज। मैं ये भी कहता हूँ कि दी FIIs and the industries, they are resilient, they can tolerate those things. But what about day-to-day pinpricks which they are facing in the administrative places? आपको उसको रोकना पड़ेगा। मैं कई लोगों से इंटरेक्ट किया हूं जो यहाँ से आउटफ्लो कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ काम करना मुश्किल है। क्या कारण है? The biggest deterrent, as I have been telling you, is the tax. Rajiv has handled the GST. I will tell you only one small thing. GST online है registration, but can the authority find out कि in how many cases when the application has gone for online registration, how many cases objections are there? I will tell you the objection. The objection they say is कि your address is not legible. In my case, they have said. I rang up the GST officer and blasted her, and I said, "Are you suffering from cataract?" It was a computer typed, but I will not name as to who has said. My counsel came and said कि सर प्लीज हमको हैंडल कर लेने दीजिए। हमने कहा मैं नहीं करने दूंगा। आप बताइए कि कंप्यूटर टाइप्ड है वो किया गया है, क्या उनके हायर अथॉरिटी ने देखा है? और ये सभी जगह हो रहा है।
ये सभी जगह हो रहा है, हमारे यहाँ के फेसलेस असेसमेंट में हो रहा है. इट इज नॉट फेसलेस, इट इज अ माइंडलेस असेसमेंट. ये हो रहा है. मैं स्ट्रेट अवे चेयरमैन को बोल चुका हूं, मैं चेयरमैन को बोला हूं, मैंने मेंबर को बोला, हमने कहा कि आप 10 केस स्टडी करके तो देख लीजिए. असेसमेंट ऑर्डर जो टाइप हो रहा है, आपने क्या सबमिशन दिया है और क्या असेसमेंट ऑर्डर में लिखा है, देयर इज नो कनेक्ट एट ऑल. एंड दिस इज हैपनिंग इन बिग केसेस आल्सो. कौन इसको झेलेगा? यहां हो रहा है. इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. आई एम वार्निंग द गवर्नमेंट कि यदि आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे, आपके पास जो रूल्स है आप मत चेंज करिए. रूल्स जितना रूल है उसमें लोग बिजनेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इंस्टेड ऑफ द पेनल्टी, इफ यू आर मेकिंग 100% additional tax also, they will put up with it. They will be very careful. They will do it, I'm telling you. But what about the harassment which people are facing every time? People are scared कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा. बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को देखना पड़ेगा. और एक स्मॉल चीज, एंड द लास्ट थिंग मैं आपको रेज कर रहा हूं, चूंकि मैं डिपार्टमेंट में 39 years रहा हूं. All the world over, I have interacted with more than 10 countries, 30 countries. What is the cost of collection for the developed economy? The cost of collection is 1 to 1.5% of the total tax. For developing economy, it is 1.5 to 2.5. It is there on the record. What is the India cost of collection? 0.54%. And 67% of the 0.5% goes only towards the payment of salary. Nothing is there. They don't have money to print the notice. Where does it come from? Why nobody is looking? I have already raised this issue in the chief commissioner's conference, and one chief commissioner came to me and said कि तुमने तो मेरे ही एरिया का रेज कर दिया इशू. ये है, देखिए ना, ये सिचुएशन बैड है. ये इसीलिए हो रहा है. Nobody is accountable. You can't take action against the officer because the officer is working in such constraints. बहुत सारी चीजें हैं, छोड़िए, बताएंगे. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज सो इम्पोर्टेंट. आपको करना पड़ेगा. नाइजीरिया जैसी कंट्री को 4% है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. 4%. मैं बता रहा हूं, मैं नाइजीरिया का टैक्स इवैल्यूएशन कर चुका हूं कंट्री का, और इंडिया में 0.54%. कहां से आएगा? कौन बता सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकेगा इस चीज को? ये सब चीज मैं बता रहा हूँ. ये सब चीजें बताने, बिल्कुल मैं ऑडियंस से कहूंगा कि इस कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सब कुंवर लोग बैठे हुए हैं. और जब A.K. सिन्हा साहब बोल रहे हैं कि जो हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं, तो सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं. इसमें कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है, बेहतर तरीके से जानते हैं. और जिस तरह से ये मुखर होकर बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अपने समय में भी इसी तरह से बुलंद रहे होंगे. मैं तो डायरेक्ट रेज करके राइटिंग में चिट्ठी में दिया. राइटिंग. अभी राजीव जी. नहीं, आपने जैसे कहा, सिन्हा साहब बहुत ही वोकल हैं, बहुत ही डायरेक्ट हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं. और बहुत जरूरी है हमें समझना कि पेन पॉइंट्स कहाँ हैं और कैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जा सकता है, जिसकी कोशिश लगातार सरकार करते जा रही है. लेकिन एक बड़ा पिक्चर लेना चाहिए. जैसे कि सिन्हा साहब बता रहे थे, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज अ पैरामीटर जिसपे हम देखते हैं. सो इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, more investments are required in capacity building, in creating resources, in creating. तो अभी जैसे you look at IT systems, so you need to invest in the latest systems, in data. So all these things take a long time. But more important and fundamental thing, taking on from the point of how you develop capacity, is to change the mindset of the people at the cutting edge, the inspector Raj, so to say. That is something, and the red tape that we said, why the bureaucracy is considered, obstacle in the Viksit Bharat long journey. और ये एक बार हम लोग ने सोचा था कि इसमें एक रोड मैप लोग सोच रहे थे आएगा, तो उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग दैट वी आर ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान, जो 4.3% की बात मैं बता रहा था ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. दे हैव आल्सो सेड कि डेट जीडीपी का जो रेशियो है, इंस्टेड ऑफ ओनली टॉकिंग अबाउट दैट, टॉक अबाउट द डेट जीडीपी रेशियो, व्हिच शुड बी 50
plus minus 1% by 2030. So the bigger picture and the macroeconomic stability जिसकी होनी चाहिए वो है. So the Indian economy, जिसको कहते हैं Goldilocks moment, it's in a RBI governor कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. So what is needs is to translate these things, how the growth impulses जो हम लोग का हो रहा है, but you see on the ground what is it that affects the common man. तो इसीलिए trust based governance की जो बात इस बजट में कही गई है, and many steps have been mentioned, but these take little time and mindset takes change जो होता है उसके लिए हमको थोड़ा और काफी काम करना पड़ता है. It is not immediately visible. So I would try to make this point कि इस बजट में एक बहुत बड़ा they have kept to the big issue on investments in infrastructure. capex को जो है public infrastructure capacity बढ़ाई तब होगी जब हम capex investor का जाए, और capex के लिए we are looking at 12.2 lakh crores, which is a very big thing. Given our resource constraint, unless we do this in the economy, so the government is on the right track to have kept it to that, which is a very big thing. We also need to understand that manufacturing को बढ़ाना ही है. जब तक हम लोग manufacturing नहीं बढ़ाएंगे तब तक we will not have the kind of jobs that is required, which is required for the large number of people who are joining the economy every year. So it is important कि सरकार ने उस चीजों पे ध्यान रखा है, but it takes time. Manufacturing as a percentage of GDP is a very low figure. We are looking at 12% to 15% range, which is very, very low. We should be looking at what China, South Korea, and all these others have done. So we're looking, and the target is to double it from 12.5%. Manufacturing as a percentage of GDP should go to 25% at least. So for doing that, what is it required to be done? So that's why a large amount of things are required to be done. But the basic thing, ease of doing business, ease of living, इसके लिए क्या क्या किया गया है, बहुत सी बातें हैं, उतनी डिटेल में आप जाएंगे तो इसीलिए. और ये जो कहा गया कि स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स इन अ वेरी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट बेनिफिट्स. नाउ ऑलरेडी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सरकार ने इतनी ज्यादा बेनिफिट्स पिछले कई सालों में दिया है. So there is a limit. The more benefits you get, you don't have money to invest in infrastructure. You don't have money to invest in capacity building. And the cost of collection is low because we are not able to invest in those critical resources. So it has to be a balance. So मेरे हिसाब से the right balance की चेष्टा की गई है, but it takes time. We need to understand that. राजीव जी, एक चीज बताइए, अभी हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर क्या टैक्स टेररिज्म है? क्योंकि अभी जिस तरह से एक रिपोर्ट के अनुसार कि भाई एक कर्नाटका में एक रेड के ऊपर उस बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब बिजनेसमैन क्या चोर होता है? मतलब वो काम भी करे, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को पैसा भी दे, उनको तनख्वाह भी दे, उनको वेतन भी दे, ठीक है, और इन सबके बाद जो है ना सरकार ये इनकम टैक्स का जो टैक्स नहीं, मैं एक मिनट सर, स्ट्रिक्ट एक्शन हैज टू बी टेकन एंड डेटरेंट बिहेवियर. जब तक ये नहीं होगा, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट का, देखिए क्या होता है कि इन एवरी बिग सिस्टम देयर आर पीपल हु नीड टू बी पुट इन देयर प्लेस करेक्टली. बट हमारा जो सिस्टम है, दिस इज वेयर इट गिव्स टू मच ऑफ, चाहे वो देयर इज अ लॉन्ग टाइम टू पनिश द कल्प्रिट. तो इवन इफ यू नो हु दैट इट इज, हु हैज नॉट डन हिज जॉब वेल, ही नीड्स टू बी क्लियरली सिंगल्ड आउट एंड मेंशन्ड. बट मैं ब्रॉडली ये कहना चाह रहा था कि सरकार कह रही है कि यू हैव टू डिपेंड ऑन बिजनेस. बिजनेस इज वेयर मनी इज जनरेटेड. वी हैव टू मेक अ सिस्टम where you should welcome people coming in and investing in India. तो जब हम वो कह रहे हैं कि पूरे इंडिया को we should be attracting FDI, जब हम फंड्स यहाँ करेंगे, unless we make a system which is attractive enough. तो इसके लिए आप जो ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की जब चीजें आती हैं, we have to show very quick action, punish the guilty, or without going into details of all these things. We are not trying to say it sensationalizes these things. It has happened many times before. There have been lot of guidelines and lot of things, but the final word on this will Sinha साहब बताएं. नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा भी, एक तो एफडीआईज आ नहीं रही हैं, एफआईआईज आउटफ्लो इतना ज्यादा हो रखा है. सर्च के बारे में मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे कर्नाटका में
किलिंग हुई है, किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने गोली मार लिया नहीं पता है, लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता दूं, बिकॉज आई वाज माई सेल्फ इन हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन विंग लॉन्ग टाइम बैक एंड many times I did it. Nowadays it is called non-intrusive way of data collection, जी and we have all the resources, including the resources to tap the phone. Tap the phone. The tapping of the phone is that, you know, with all due process, जी what we are doing is when we are getting informations that certain person is doing it, like in the Northeast, I will tell you, we have tapped the phone, and ultimately for 6 months of following, we found out that 200 crores of transaction which the person is doing is out of books of accounts. That is based on this tapping. Tapping. Here in Karnataka, I am not aware, I just do not know. But normally today in big businesses, in big searches, the information is collected. I will not give you the name of a Noida, very big evader of tax. And before we conducted the search, we were aware of the evasion to the tune of 1,200 crores. That is there today. That way, let me also pat the income tax department on the back that this collection of information is there. Certain problems are in the Northeast, somewhere the search was taking place, and I got a complaint immediately कि सर हमारे यहाँ का कैमरा स्विच ऑफ कर दिया गया. I immediately scolded my officer and I said, let all the cameras in the business premises be open. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर्च होगा. प्रॉब्लम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहीं कहीं छोटे स्टाफ ज्यादती करते हैं, तो वो होता है. बट ये जो डेथ हुआ है, हम इसके बारे में फॉलो नहीं किए हैं, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते. कभी कभी क्या होता है कि इतना डेडली एंड डेवास्टेटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना डेडली एंड इंफॉर्मेशन मिलता है कि पीपल दे टेंड टू कमिट सुसाइड. कानपुर में हमने सर्च के पहले मैंने भी, हमारे पास इंफॉर्मेशन से मैंने उनके बेडरूम से पेपर निकलवा लिए थे, और उस पेपर में एग्जैक्ट लिखा हुआ था कैलकुलेशन. जब दिखाया सर्च के दौरान तो बोला सर मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ. हमने कहा कर लेता हूँ, बाद में कर लेना है, क्या बता रहे हैं. ऐसा नहीं है आज के डेट में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स में बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस आर देयर. सिन्हा साहब, एक चीज इसमें, जब हम एक समय हम बात करते थे इंस्पेक्टर राज है, हाँ. ठीक है ना, फिर उसके बाद आ गया अब जी फेसलेस असेसमेंट है. तो अब जो फेसलेस असेसमेंट है, तो उसके बावजूद भी अगर कर्नाटक जैसी घटना हो रही है, तो क्यों हो रही है? ये तो उससे एकदम दे आर द टू डिफरेंट separate and distinct things. Search investigation wing works in silos. फेसलेस और असेसिंग ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन विंग से 1% भी नाता नहीं है. और इन्वेस्टिगेशन विंग का एक सेपरेट सिस्टम ऑफ वर्किंग है जिसमें वो डेटा कलेक्ट करता है. डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको कन्फ्रंट किया जाता है. वो कन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा डैमिंग होता है कि समटाइम्स पब्लिक जो है, वो जो पर्टिकुलर ओनर है, he must have gone into shock and prompted to get. लेकिन हम अभी उनके बारे में नहीं कह सकते, कोई मुझे नहीं. बिल्कुल ठीक है. लेकिन आपको हम बता देते हैं कि सर्च का जो मैटर है ना, बहुत ही प्रोफेशनल वे में होता है. बट आफ्टर सर्च द असेसमेंट इज 80%. मैं एक क्वेश्चन, ये आप अभी इस पे जो आप कमेंट करना चाहें करिए, बट उसके बाद एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि बिजनेसमैन जो अपने परिवार के लिए, जो इतने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काम करता है, साथ के साथ सरकार के लिए काम करता है. मतलब सरकार तो देखिए बड़ा, मतलब उसकी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा लेके चली जाती है, 1/3 से भी ज्यादा का हिस्सा वो सरकार ले जाती है, ठीक है ना. तो जब इतना सब कुछ बिजनेसमैन करता, तो उसके बाद ऐसा क्या होता है, क्या कारण है जो सरकार उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है कि सरकार को अगर टैक्स की चोरी करनी पड़ रही है तो क्यों करनी पड़ रही है, अगर करनी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा, टू टेक इट, ये डायरेक्ट टैक्स की बात हम लोग कर रहे थे, इनकम टैक्स. जहां डायरेक्ट टैक्स है तो आपका इनकम टैक्स पे होता है, बट लुक एट इनडायरेक्ट टैक्स, जो एक्साइज है, कस्टम्स है, जीएसटी है जी. तो इसकी बात, क्योंकि मैंने इस एरिया पे काम किया हुआ है, तो जब हम लोग जीएसटी का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा पिक्चर आप देखिए कि कितना फर्क पड़ा है और कितनी जल्दी पड़ा है. तो जहां आप कहते हैं कि इस तरह के 1-2 केस बहुत सेंसेशन हो जाते हैं, लेकिन जो जितना काम हुआ है और इतने शॉर्ट पीरियड में है, वो नॉट ओनली मतलब कि अनइमेजिनेबल है. इट हैज नेवर हैपेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. मैं बताना ये चाहता हूँ कि व्हाट इंडिया हैज डन इन टर्म्स ऑफ
फॉर एग्जांपल जीएसटी का जो सिस्टम है इंडिया का is by far the most advanced in the world in terms of the IT requirements and comprehensive. Now, this has happened in a country which 10 years back did not have enough, IT penetration. Many people didn't know how to use computers. So today, you see, when GST was a leap of faith, जब ये बना था तब ये बात हो रही थी कि हम पहले कैसे सिस्टम से चेंज करें. So we said that we should have only a IT based system जो एकदम ही बदल गया. तो आप देखिए कि उस समय तो इस बात का जो प्रॉपर एप्रिसिएशन आप करेंगे तो आप समझेंगे कि विच इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिकॉज जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम. उसके बावजूद भी वी हैव डन समथिंग विच इज रिमार्केबल. और मैं उसमें, जैसे इसके पीछे एक एजेंसी जीएसटीएन थी, मैं उसके डायरेक्टर, उसके बोर्ड में था काफी दिनों तक, तो मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है. मैं इसलिए बताऊंगा कि ये जितनी बड़ी चीजें हुई हैं ये इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं हुई हैं और हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं. तो इसको कहते हैं लीफ फ्रॉगिंग. लेकिन आपका जो कहना था वो ये कि इतना करने के बावजूद भी और क्या क्या किया जा सकता है. एंड द लार्जर पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि ठीक है, जो टैक्स पेयर्स है उनको लगता है कि भाई हमने इतना टैक्स दिया, देन वी शुड अगेन लुक एट द बिगर पिक्चर. बिगर पिक्चर इज, मैं आपसे अगर पूछूं कि इंडिया में कितने लोग टैक्स देते हैं, अगर डायरेक्ट टैक्स में देखिएगा तो नंबर इज वेरी स्मॉल. एंड अगर आप फिर भी देखिएगा जीरो रिटर्न, बहुत लोग रिटर्न देते हैं. और अब मैं डेटा की बात नहीं करूंगा, मैं जनरली बता रहा हूं कि आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ इनकम टैक्स जो लोग फाइल करते हैं उनकी संख्या एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखिएगा, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. एंड उसमें भी जो इफेक्टिव रिटर्न, जो टैक्स रियली देते हैं, इज सो स्मॉल. तो हम लोग 2%, 2.2, 2.3% की बात कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर नाउ सेइंग इज unless we increase the tax base, and इसी के लिए, बट आपने देखा होगा कि पिछले साल आप जैसे बता रहे थे मानिक तला जी कि हम 24 लाख में भी आपको वर्चुअली टैक्स कम देना है. तो कहने का मतलब यह है कि टैक्स जीडीपी रेशियो उसको आप देखेंगे, हालांकि काफी नहीं तो, बट राजीव जी, जैसे आप टैक्स कम देने की बात करते हैं, तो अगर हम एक तरफ से ये भी डेटा देखें कि हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 10% लोग ही हैं जो 50,000 रुपए तक पर मंथ कमाते हैं, ठीक है ना. तो उस सिचुएशन में, यानी कि जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा कोई? इनकम भी तो होनी चाहिए. देखिए आपको वी नीड, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी, वो फिर अब थोड़ी डिटेल बात हो जाएगी. इसमें बहुत सारी चीजें. देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी बहुत ही इनफॉर्मल है. तो फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसमें टैक्सेशन होता है. यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप देखिएगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द इकोनॉमी इज फॉर्मल, व्हाट परसेंटेज इज इनफॉर्मल, what percentage is agriculture में there is no income tax. So there are a lot of these issues which अभी उतना ही समझेंगे कि over a period of time we have increased the tax base. पहले सरकार का ये था कि ठीक है आप टैक्स नहीं भी दें, but if you come into the system, so very large percentage of people now file tax returns and don't pay any tax, which is good enough because आप धीरे-धीरे formalization की तरफ जा रहे हैं. तो ये एक लंबा प्रोसेस है, because when you see we were क्लोज टू वेरी, मतलब कि हम लोग काफी आगे लंबी जर्नी में चले हैं. और वो हम यही बताना मैं चाह रहा हूं कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और कितने कम समय में हुआ है. लेकिन अभी भी आगे के रास्ते के हिसाब से आपका जो कहना था बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि और आगे क्या किया जाए. दैट इज व्हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारी चीजें हैं. अगर मैं उसमें लिखूं, अगर आप बजट हाइलाइट्स देखिएगा जो सरकार ने डाले हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. बट इसका क्या होता है कि जनता को पूरी डिटेल पता नहीं होती. ये टेक्निकल मैटर समझा जाता है, सीएस बताएंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन. इसीलिए पिछले बार सरकार ने कहा है कि एक ऐसा सिस्टम लाएं जिसको हम लोग अब सीधे ब्रॉडली कहा जाए, उसमें एग्जाम्पशन नहीं होगा और धीरे धीरे करके. तो बहुत सी चीज डायरेक्ट टैक्स में भी हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्स जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए जीएसटी में कंप्लायंस कॉस्ट कैसे घटाएंगे. आपका यही कहना था कि कैसे कंप्लायंस बर्डन घटाया जाए. लेकिन इतना करने के बावजूद भी बहुत सी चीजें करनी पड़ी. और जीएसटी 2.0 पिछले बार जो 15 अगस्त को पीएम ने अनाउंस किया था, आप उसका देखिए कितना बड़ा फायदा लोगों को हुआ. तो देखिए इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत कम है, जीएसटी का भी इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा कम है. तो ये लोग नहीं समझते. हम लोग समझते हैं 35%, बट दैट इज नॉट ट्रू. कितने लोग दे रहे हैं और कितने लोग उसका एक्चुअली कर रहे हैं. तो इन अ वे जीएसटी में भी रियल इफेक्टिव टैक्स रेट इज वेरी वेरी लो. तो उस तरह से आप देखिएगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू डू मेनी थिंग्स जिसको हम और अट्रैक्टिव बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट द ग्राउंड लेवल है,
वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है, माइंडसेट बदलने की जरूरत है, एंड इफ समबडी डज समथिंग मिस्टेक, उसको फिर वी हैव टू गिव देम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू मेक श्योर कि एवरीबॉडी करेक्ट्स देमसेल्व्स, व्हिच इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. सो इट इज ट्रस्ट बेस्ड. आप जो बता रहे थे जीएसटी में लोगों ने क्या किया, फेसलेस कहा, और अब है रिस्क बेस्ड. देखिए, आप जीएसटी की बात अगर आप लोग जानते होंगे तो जीएसटी इज सो मतलब कि लिबरल कि you have to just give a form and take the credit. तो it is like giving you money for just giving a declaration. आप सोचिए इंडियन जैसे सिस्टम में how many people are then tempted to just give a declaration and get money out of the system. These numbers are very large. तो आप देखिए इतना जब हो रहा था तो लोगों ने कहा कि it will be so misused that we'll become bankrupt. But सरकार ने कहा कि नहीं, we should trust people. And देखिए आज it is still considered success in a very big way. And I just said कि it is just forming. उसमें भी लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, you know, कि आए दिन में लोग कुछ पकड़ाते भी हैं, but is all done on risk-based assessment, on just looking at data returns. Nobody goes to anybody. And अभी आप देखे होंगे कि इंस्पेक्टर राज को बदलने के क्या हुआ कि nobody is supposed to go and see the premises unnecessarily. तो ये सब बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. बट नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन मेंटालिटी कि जो हमको मिल गया उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम चाहते हैं इसको कैसे बढ़ाया. बिल्कुल, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे भागते वो हैं. अच्छी चीज है. बिल्कुल, सरकार से भागना ऑलवेज चाहिए. एक्सपेक्टेशन बड़ा होना चाहिए. एंड स्टॉक मार्केट कमिंग डाउन, गोइंग डाउन, एंड उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं. हाँ, 2827 पॉइंट जो है ना सेंसेक्स टूटा है आज, वाकई तो वही रिकवर कर गया उसके लिए काफी. और भी बहुत सारी चीजें हैं. और दूसरा जो alarming चीज है जो कंसिस्टेंटली चल रहा है वो है आउटफ्लो. वाई आउटफ्लो? मैं इसको स्टडी करता रहता हूँ. करीब 4 साल पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट वाज बोस्टिंग दैट वी हैव गॉट 80 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, FDI एंड ऑल. Out of 80 billion, 75 billion were towards the FII net inflow into the system, into this share market. You know, getting that one out is so easy. So this is what they are doing it now. If you had encouraged them to make investment and bring dollar, that would have been better. This is what China did. हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टिल, राजीव जो कह रहे हैं हमने खुद देखा है. आप अभी कह रहे हैं कि अमेरिका, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं. $25 का इंटरेस्ट भी आपको बैंक से जो मिलता है उस पर TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. एंड इन ऑर्डर दैट यू रिट्रीव दैट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट यू विल हैव टू फाइल टैक्स रिटर्न. So this is how all over the country, all over the world, this is there. We have about 8 crore of taxpayers in India, where these bank interest and all these things, many exemptions are there. So these things are there. That way we have a good system. We have to, as I told you, one of the most important thing nowadays is that they have to go for administrative reforms. They have to be human. That is not happening. People are cheesed off because of this. और उसको करना पड़ेगा. बस यही जी. नवीन मानिक तालिया जी, आप जीएसटी के भी एक्सपर्ट हैं, आईटी के भी एक्सपर्ट हैं, तो मुझे बताइए कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं या देते हैं, या मतलब मजबूरी है वो देना ही पड़ता है, वो बचने का उनके पास स्कोप नहीं है, तो उनका ओवरऑल जो है कमाई का कितना % हिस्सा निकल जाता है, सरकार को चला जाता है? क्या ये 45% है, 40% है? नहीं, यदि हम जो टैक्स रेट देखें जी, तो टैक्स रेट हमारे इनकम टैक्स के तो काफी कम है. आज यदि हम दूसरे देश से कंपेयर करें तो काफी कॉम्पिटिटिव है, वो कई जगह कम है जी. और जीएसटी के भी रेट हमारे रीजनेबल है. रेट ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, जो कंट्री की इकोनॉमी चलती है वो बिजनेस से चलती है. इकोनॉमी जो चलती है हमारी, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग से चलती है. तो जब तक उसके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट नहीं होगा कंट्री में, उसमें नहीं हो सकता. अब जीएसटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, विद इन 3 डेज जो है आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. एवरेज टाइम जो है 10 to 15 डेज है. आप 3 दिन में लेके दिखा दो. दूसरा क्या है, यदि आप थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करें तो आपको आधे घंटे में नंबर मिल जाता है, आधे घंटे में जीएसटी का नंबर मिल जाता है. तो ये थोड़े करने पड़ेंगे. दूसरा क्या है कि आप जीएसटी की अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट जो है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है. लेकिन जैसे आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं,
उसकी 13 लास्ट डेट होती है, 14 से आपके पास एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं कि फाइल योर जीएसटी आर रिटर्न, आइदर यू हैव टू पे इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो दे आर क्रिएटिंग पैनिक इन द बिजनेसमैन। दे शुड सेंड द मैसेज आफ्टर 20th, जब आपकी ड्यू डेट निकल जाए आप उसके बाद मैसेज कीजिए। लेकिन आप शुरू में उनको मैसेज दे रहे हैं, तो शुरू में आप उनको पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा क्या है, एक इनकम टैक्स में मेन है फेसलेस। सबके बस का नहीं है कि वो राइटिंग में कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन का बोल के भी कम्युनिकेट होता है, बोल के बंदा कई बार अच्छे से समझा पाता है, राइटिंग में तो नहीं समझा पाता। सेम असेसिंग ऑफिसर है, वो भी नहीं समझ पाते कई बार राइटिंग में। उनको भी मतलब ये होता है कि बोल के समझा सकते हैं, या एसएससी बोल के बाद अपने समझा सकता है। तो ये उसमें बहुत बड़ी लैकिंग है, जिसकी वजह से जो असेसमेंट ऑर्डर है वो ठीक नहीं आ पाते। तो इसके साथ साथ अब जैसे एफडीआई की बात हो रही थी, एक तरफ एफडीआई की बात होती है, एक जान के बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, इस टाइम इंडिया का फॉरेन रिजर्व हाईएस्ट है, इट इज 758 अरब डॉलर जी, हाईएस्ट है। लेकिन एफडीआई नहीं आ रहा। तो एफडीआई इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो यहाँ के एचएनआई है वो इतना टैक्स पे करते हैं, वो बाहर भी इसलिए जा रहे हैं। उनको चाहे वो टैक्स पे करें, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। यदि उनको अपने ऑफिस में जाना है, उनको पूरा पूरा घंटा लगता है, ट्रैफिक जाम इतना है, पोल्यूशन इतना है, स्कूलों में एडमिशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जहां भी डिपार्टमेंट में काम कराने जाते हैं इतना टाइम लगता है, वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इस वजह से जा रहे हैं। कोई यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है इस वजह से नहीं जा रहे, एटमोस्फियर यहाँ का ऐसा हो गया। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड। हमेशा बिजनेसमैन जो होता है वो किसी भी कंट्री इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन आप उसके ऊपर शक करो, उसको ये समझो कि इसने टैक्स इवेजन किया है, तो ये बहुत गलत है। अब अंग्रेजों को गए हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। अब हमारी जो सरकार है वो हमारी अपनी है, तो हमारी जो अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, तो आपको फेथ दिखाना पड़ेगा बिजनेसमैन, खाली कहने से नहीं होगा, आपको फेथ दिखाना पड़ेगा उधर। उनका अब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर उनकी हरासमेंट होना, एकदम नोटिस इशू कर देना, एकदम रिप्लाई देना। और आजकल क्या एक सबसे बड़ा सिस्टम हो गया है, इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं, आप जो है रिप्लाई कल दीजिए, आप डे आफ्टर टुमारो दीजिए, आप परसों दीजिए। ये क्या होता है? मतलब आप थोड़ा कम से कम उसको प्रॉपर टाइम तो दीजिए ताकि वो चीजों को समझे। पहले ही नोटिस देख के बेचारे का वैसे ही बीपी एकदम डाउन हो जाता है, आधी जान तो ऐसे निकल जाती है। उसकी जान वैसे निकल जाती है, उस बेचारे को समझ नहीं आता कि ये नोटिस में है क्या। अब वो अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएगा, समझेगा, उसके बाद ही तो रिप्लाई देगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो हमारे एचएनआई है वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। वो टैक्स रेट की वजह से नहीं जा रहे, यहाँ पे एनवायरमेंट ही ऐसा हो गया कि बिजनेसमैन को जो है हमेशा ये माना जाता है कि इसने टैक्स इवेजन किया होगा। तो ये चेंज करने की बहुत जरूरत है। अब डिस्कस करूं ये सारी चीजें, इतनी मेरे पास पर्सनल नॉलेज में आता हूँ आपके पास। अब एक इनकम टैक्स जी, इस बजट में इनकम टैक्स एक्ट आया 2025, ठीक है, ये अच्छा रिफॉर्म्स है। 61 का एक्ट चल रहा था, अब देश की इकोनॉमी के हिसाब से, देश की ग्रोथ के हिसाब से हमें चेंज करना है। अब वो ठीक है, इन्होंने लेके आए हैं, लेकिन अब वही उसमें सेक्शन भी कम किए इन्होंने, लैंग्वेज भी उसकी इजी की है, लेकिन अब देखो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, वो इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि अब इनको बजाय टैक्स रिफॉर्म के, टैक्स रेट हमारे कॉम्पिटिटिव है। यदि आप यूएसए से रेट देख, कॉर्पोरेट आज भी हमारा काफी कम है यूएसए से, तो बाकी कंट्री से भी काफी कम है। अब इनको रिफॉर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव इतना इजी करना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेसमैन आए ना। अब जो बंदा एक काम करने आ रहा है उसको जीएसटी, सिंपल सा जीएसटी नंबर लेने में 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, कहां से वो काम करेगा? तो अब खाली टैक्स रिफॉर्म्स का नहीं, अब क्या है कि इनको थोड़ा देश में ऐसा एनवायरनमेंट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा रोड्स के ऊपर भी, ट्रैफिक जैम की समस्या के ऊपर भी, जहां भी देखो रेनोवेशन चल रहा है, लोग बाग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऑलरेडी बंदे के ऊपर इतना स्ट्रेस है जॉब का, जब वो जाने लगता है रास्ते में तो उसको आधे घंटे की बजाय 2-2 घंटा ट्रैफिक में जाम रहता है। यानी कि सरकार को अब हमें ओवरऑल जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों को अच्छी हवा मिले, अच्छा पानी मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं तो आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए, पानी अगर साफ पीना है तो आपको आरओ चाहिए, और सड़क पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अर्चना मैम, एक और बात बताएं कि पीछे बड़ा एक डिबेट चली थी कि ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो खत्म कर दिए जाने चाहिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए ट्रांजैक्शन टैक्स लाना चाहिए। तो अगर ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लाते हैं तो उससे क्या सुविधा हो सकती है, और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो उससे क्या चैलेंजेस हैं? ईज ऑफ डूइंग में ट्रांजैक्शन टैक्स तो इतना बेनिफिट नहीं लग रहा मेरे हिसाब से जी। तो जो स्लैब भी जरूरी है, क्योंकि अगर बिल्कुल
जीरो ही स्लैब कर दें, कोई स्लैब ही ना हो तो फिर तो 1 रुपया भी कमाएगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ तो उसको अपनी बेसिक खर्चों के लिए, अपने फैमिली चलाने के लिए कुछ तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसके बाद ही टैक्स लगना बेटर है। तो और ट्रांजैक्शन में तो वो 1 रुपया भी खर्च करेगा या तो बट अगर वैसे देखें जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब वो टैक्स लगना बेटर है, बट आप इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 100 रुपए कमाता हो या 10,000 कमाता हो या 10 लाख कमाता हो, टैक्स तो सबको बराबर ही देना। तो उस हिसाब से तो फिर हम डबल टैक्स दे रहे हैं। हम तो ट्रांजैक्शन टैक्स भी दे रहे हैं और इनकम टैक्स। हाँ, तो वही तो मैंने पूछा था मानिक तालिया जी से कि भाई ओवरऑल जो एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से पैसे कमाता है तो वो कितने % टैक्स दे देता है। अगर 30% वाला स्लैब अगर हम उसका इनकम टैक्स में ले लें तो 30% उसने वो दे दिया, फिर जीएसटी का भी आप 12%, 18%, 28%, कोई एक एवरेज पकड़ लें तो 40% प्लस तो दे ही देते हैं ना। नहीं नहीं, मेरा इसमें मानना है, अर्चना जी तो जैसे कि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, दूसरा एक घर भी चलाती हैं, घरेलू औरत भी हैं, तो दोनों चीजें हैं, तो इनसे ज्यादा डिफिकल्टी एक आम आदमी के लिए या एक आम परिवार के लिए इनसे ज्यादा तो एनालिसिस मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। तो इनका हमें सुनना चाहिए, जैसे मनिक तालिया जी ने बोला कि भाई एक प्रॉब्लम्स आती है इंडिया के अंदर टैक्स नोटिस देने की, ये बात मैं सहमत हूं मैं भी इनसे कि आज कोई भी ऑफिसर है, जब इन्वेस्टिंग एजेंसी है 2 दिन का 24 घंटे का, 10 साल से तुम सोए हुए थे किसी चीज में, आज उसको तुम्हें 24 घंटे के अंदर एकदम से ऐसा हो गया कि जैसे आज ही सब कुछ हो जाएगा, तो आप उसको 1 महीने का पूरा टाइम दीजिए। कोई भी नोटिस के अंदर मिनिमम 30 डेज का टाइम होना चाहिए। जैसे यूएस के अंदर है, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को आना है, बकायदा वो एक फोन करेगा कि मैं इस तारीख को आपके यहाँ रेड करना चाहता हूं। यहाँ तो बगैर बोले आ जाते हैं मॉर्निंग के अंदर 8 बजे 7 बजे, और आकर बिहेव ऐसा किया जाता है कि जैसे कि वो चोर है या क्या है। तो इसके लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है, जैसे कर्नाटका में हुआ, तो वो चीजें नहीं दोहराई जानी चाहिए कि एक प्रेशर फाइनेंस के मैटर को लेकर नहीं होना चाहिए। ये चीजें यदि कोई क्रिमिनल है जिसने कोई कत्ल किया है या कुछ और किया है, उस केसेस के अंदर डेफिनेटली आप हार्श से हार्श स्टेप लीजिए। पर एक फाइनेंशियल क्राइम जिसको हम कहेंगे, जो फाइनेंशियल चीजें अनबूझे या अनजाने में भी लोगों से हो जाती है, उनको इतनी समझ नहीं होती और वो कर जाते हैं। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी आप देखिए कितने नोटिस हैं गलत दे दिए जाते हैं, तो वो गलत देते हैं, उसके लिए हरेसमेंट होती है। अब आरडी ऑफिस है, वो दुनिया भर के लोगों को परेशान करती है। एक कंपनी के ऊपर कुछ कर दिया तो 100 केस बना देगी, वो रात दिन बिजनेसमैन उसी में लगा रहेगा। तो इन चीजों के रिफॉर्म होने चाहिए। तो अर्चना जी से मेरे ख्याल से सुनना चाहिए डिटेल में इसके ऊपर। इसमें तो क्या है कि इतना आफ्टर 75 ईयर तो हमारी जो, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे हम लोग हो, हमारी यही है कि गवर्नमेंट चोर है और गवर्नमेंट कहती है हम चोर हैं जी। तो जब तक हम गवर्नमेंट को अपना ना समझे और गवर्नमेंट हमें अपना ना समझे, तब तक ये गैप रहेगा ही रहेगा। हमें पहले ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए काम कर रही है और हम भी अपने कंट्री के लिए ही काम कर रहे हैं। जब तक ये वाली अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, खाली ये कहने से नहीं होता ना। नहीं, बट फीलिंग से नहीं होता ना। फीलिंग तो तभी आएगी नहीं, जब मुझे आप एनवायरनमेंट दोगे, तभी तो फीलिंग आएगी ना। गवर्नमेंट नहीं कर रही ना ये चीजें। गवर्नमेंट नहीं कर तो रही। इसमें क्या होता है कि जो ना उनको फैसिलिटी, जो एक टैक्स पेयर है उसको यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। उसको हर चीज प्राइवेट, अगर उसको मेडिकल में जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप कोई भी अपना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में जैसे कोई अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। हाँ, उसके लिए भी आपको अगर कहीं एमपी से सिफारिश लगवानी है तो कहीं मंत्री से सिफारिश लगवानी है तो जाके कहीं आपको एडमिशन मिलेगा। तो अभी सरकार ने बोला है 3 एम्स और बढ़ाएंगे। हम बता रहे हैं जो स्थिति है, कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट कर रही है, एड्रेस कर रही है। देखिए मतलब क्या कहें, अब जो लोग HNI है वो नहीं चाहते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ना तो उनका इतना एनवायरनमेंट है, हाइजीन नहीं है, उनके ऊपर डॉक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो देख ही नहीं सकते। तो वो सारे इसलिए प्राइवेट बढ़ रहा है सब कुछ। तो HNI कहेगा कि मैं बाहर जाऊंगा, प्राइवेट तो बढ़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी बहुत हॉस्पिटल जो है वो डेविड हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ऑस्टिन में, मैं गया हुआ था वहाँ। देखिए वो सारी चीजें हैं एंड कंट्री दैट वे इज डेवलपिंग वेल। एंड लेट मी आल्सो से द पॉजिटिव थिंग्स। आपको गवर्नमेंट हैज टू एक्ट एज फैसिलिटेटर कि हम पब्लिक को कैसे दे सकते हैं। हम लोग कोशिश किए हैं, हम तो ज्यादा, राजीव ने जैसे जीएसटी के बारे में बताया है, मैं भी जीएसटी के बारे में कुछ जानता हूँ, देखा हूँ।
नॉट लाइक राजीव। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो मैं एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल टाइम मैं देख रहा हूँ कैसे सुधारा जा सकता है। हम अपने चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के चार्ज में, मेरा कमरे में कभी रेड लाइट नहीं जला, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पीएन को कहा कि कोई भी नहीं रोक सकता है। द रिजल्ट इज कि कोई भी, one person just walked in with a small income, he had filed a return of 8 lakh and he was slapped a tax of 2.5 crore. So मेरे कमरे में आ गया। हमने कहा क्या बात है, तो बोला कि सर देखिए सर ने रिटर्न दिया, कहा कि घर जाओ, आना नहीं ऑफिस। आधे घंटे में पढ़ा, मैंने हमने अपने अफसर को बुलाया, उसको ट्रांसफर किया, कहा 10 मिनट में रिलीव करो उसको। बहुत, हम कितनी बात आपको बताएं, ये पर्सनल बता रहे हैं, बट दीज आर द थिंग्स व्हाई दी एट द हायर लेवल, कमिश्नर लेवल, मैं अभी भी लथाड़ता हूं लोगों, कमिश्नर लेवल पर जो है ग्रीवांस का सिस्टम नहीं है। ग्रीवांस सिस्टम बना हुआ है, हम आपको इतना बता रहे हैं, सिस्टम स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, लेकिन टैक्स में ह्यूमन डिस्क्रिशन को कभी आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ऑल इज इंपॉर्टेंट इज कि यदि आप देखते हैं, हायर ऑफिसर देखता है, पनिश करिए, सो कॉज दीजिए, सेंसर करिए, उसकी सीआर में एंट्री करिए, कभी नहीं होता है। और दिस इज द रीजन आई से सेंस ऑफ फियर हैज गॉन आउट द माइंड ऑफ द पीपल। सेंस ऑफ फियर हैज गॉन, गलत किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे। अभी तो हमने कॉफी पे चर्चा करी, अगली बार चावल पे चर्चा बता रहे रखेंगे। हैं, देखिए अब सिस्टम भी है, हम जो इतना सारा जो बजट में आप चेंजेस कर रहे हैं कि इतना परसेंट, हम आपको बता देते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। द गवर्नमेंट शुड स्टॉप, पुट अ स्टॉप, व्हाटएवर इज देयर इन द इनकम टैक्स के आधार पर जितना परसेंट आप टैक्स ले रहे हैं, लीजिए, आप रिफॉर्म्स कीजिए कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको जीएसटी का बताया, आप सोचिए साहब, मेरा जीएसटी का नंबर हमको लिखता है कि आपका योर एड्रेस इज नॉट लीजिबल। हमने कहा दिस इज ए कंप्यूटर टाइप, यू टेल मी डू यू हैव कैटरेक्ट, आई स्ट्रेट अवे सेड दिस। और तब जाके नहीं सर हम कर देते, फिर से जवाब दीजिए। मेरे सीए आए और सीए बोले कि सर आप छोड़ दीजिए सर, हम हैंडल करेंगे। हमने कहा कि मेरे आज तक मैं आपको बता दूं, देव अच्छी तरह जानता है, मैं अभी भी हैंडल कर रहा हूं, मैं 1 रुपए ब्राइब नहीं दूंगा, सीधी बात है। इसीलिए आपको बताते हैं कि अब आप लोग जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, आप लोग शांति से सुन लेते हैं। आप लोगों को रेज करना होगा इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जाइए, कोई लॉ चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स में कोई लॉ चेंजेस की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कर लीजिएगा वो अलग बात है। जीएसटी में भी, जीएसटी का आपको हम बता रहे हैं 1 जुलाई 2017 में आया है, और उसके बाद से जो टाइप ऑफ रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इज ह्यूमंगस। 2012 में in St. Petersburg in the conference where 35 countries came including USA, I declared and it was accepted that income, उस वक्त जीएसटी का उतना ये नहीं था, income tax in India computerization was most comprehensive. You have such a system, AIS आता है, आप देखिए ना। on the one hand मैं good thing about income tax बता रहा हूँ, इतना अच्छा हो गया है, सारी चीजें हो गई है। All that is required is tighten your officer, introduce the system of supervision. The deputy commissioner is supervised by additional commissioner. Additional commissioner supervised. मैं कितनी बार चेयरमैन को कहा, मैंने कहा we have 4 levels of supervisory officers, yet the grievance are mounting. Why? The reason is people are not doing their job. यानी कि सुपरविजन को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। चिदम्बरम डायरेक्ट हमको अपने पास एक दिन, one day he was very agitated and he called me. I had direct interaction with him. बुलाया, बोला कि AK, you just see this, 29 questionnaires were issued by an officer of Bombay. 29, and this is routine, I'm telling you. चिदम्बरम ने एक दे दिया था, मैंने लाया, my chairman told कि they can ring up the commissioner of Bombay. And I asked him, no answer. HNI, हम जानते हैं जेपी मॉर्गन का वाइस प्रेसिडेंट है, यहां से चला गया दुबई, यहां से सिंगापुर से दुबई, इंडिया में रहना नहीं चाहता है। आज मैं उसका केस हैंडल कर रहा हूं बॉम्बे में। मोस्ट फ्रिवलस, एंड
मेरे को जानने के बावजूद भी people are not able to handle it. Why? This is the situation, and I know one case. There are thousands of cases like this. आपको रोकना पड़ेगा. बिल्कुल 1000 ऑफ केसेस हैं। और प्रेम जी, इतना सब कुछ बताया, और क्या सिस्टम में चल रहा है, क्या गवर्नमेंट में चल रहा है, क्या डिपार्टमेंट में चल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई HNI जो है हर महीने आज की तारीख में लगभग 5000 लोग देश को छोड़ रहे हैं, पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो सिर्फ अकेले नहीं जा रहे हैं, अपनी वेल्थ भी लेके जा रहे हैं। जो कल को सर भारत को पैसा कमा के दे सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर जा रहे हैं, वो दूसरे देश में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या पीड़ा रहती है, और आपको अगर मौका मिले या मतलब आप जाना चाहें तो क्यों जाना चाहेंगे? देखिए, HNI के जो लोग हैं जो जाते हैं, और कुछ तादाद पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, क्योंकि अपनी कंट्री को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है। हर आदमी का एक लगाव है, और भारत की मिट्टी से मैं कहूँगा भारत के लोगों का तो अपने आप में बहुत लगाव है। तो भारतवासी कोई भी अपनी देश को, अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहता है। जो विदेशों में भी बसे हैं वो यहाँ से ज्यादा कल्चर को अडॉप्ट कर कर चलते हैं और वहां पर ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। इसको जाने का कारण, जैसा कि सीना साहब ने बताया, राजीव रंजन जी ने बताया, या मनिक तालिया जी ने बताया कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सिस्टम से फ्रस्ट्रेट कई दफा होते हैं। आप रिफॉर्म जब लाते हैं, कुछ भी करते हैं, गवर्नमेंट में मिलना हो एक आम आदमी को, मैंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी कुछ टाइम पहले कि जो ज्यादा टैक्स पेयर है, आपको कलेक्ट करना ज्यादा टैक्स, उसको कुछ गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड दीजिए। जो 10 करोड़ की टैक्स देता है उसको एक ऐसा कार्ड दिया जाए, उसको ट्रीट किया जाए एज ए क्लास 1 ऑफिसर। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर में किसी मिनिस्टर को जिसने 10 करोड़ रुपया टैक्स दिया है तो वो गर्व से कहे कि भाई मैं टैक्स पेयर हूं, अपना कार्ड दिखाए, उसको कोई पास की जरूरत ना हो, और वो एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। यदि कोई आदमी 10 करोड़ रुपए या कोई कंपनी 10 करोड़ रुपया साल का इनकम टैक्स जमा करती है या GST जमा करती है, तो इसके मतलब वो इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। तो उसको यदि आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आप दुबई है, UAE, वो यदि इन्वेस्टर कोई आता है उसको हाथ पर लेते हैं। इन्वेस्टर कोई चीज बोलता है तो इज्जत बख्शी जाती है। तो वैसे यदि यहाँ पर इन्वेस्टर को किया जाएगा तो यहाँ से क्यों जाएगा कोई? हर आदमी करने को तैयार है। यदि एक जो 10 करोड़ पे कर रहा है, इसका मतलब कम से कम 1000 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करें। एयरपोर्ट के ऊपर आज सरकारी अफसर को, डिप्लोमेट को या किसी को हम देते हैं, एक गोल्डन कार्ड होल्डर के लिए अलग से हो, जो इमिग्रेशन के ऊपर आएगा, गर्व से वो निकलेगा तो उसको एक प्रेस्टीज महसूस होगी। एयरपोर्ट के ऊपर एक सरकारी अफसर के लिए तो एक गाड़ी जाने के लिए VIP बना है। जो आदमी एक टैक्स देता है, जो 10 करोड़ रुपया साल का देता है, वो एक जनरल गाड़ी से जाकर खड़ा होता है, उसकी गाड़ी को एक छोटा पुलिस वाला भी आकर कहता है गाड़ी अपनी हटाइए। क्यों नहीं उसको भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक इसका दर्जा दिया जाए, जो गवर्नमेंट के रिफ्यूम के अंदर यदि आज कल को हमारे भगवान करे कि भाई 10 करोड़ टैक्स पेयर हो जाए हिंदुस्तान के, जो 10 करोड़ रुपया टैक्स जमा करें, तब की तब इसको सोचेंगे। आज हमारी इकोनॉमी का टोटल 150 करोड़ की जनता है, जिसके अंदर कुल 3.5% लोग टैक्स पे करते हैं। इसके मतलब 3.5% गवर्नमेंट का डेटा है ये, और 3.5% टैक्स के अंदर भी 1.5% सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी इतनी हाई है। तो यदि नेट देखा जाए तो सिर्फ 1.75% प्राइवेट लोग टैक्स देते हैं, और जिससे के कंट्री का खर्चा चलता है। तो यदि उनके अंदर से हम आइडेंटिफाई करके 5 करोड़, 7.5 करोड़, 10 करोड़ स्लैब बना दिए जाएं, और ऐसी कंपनियां जो टैक्स भरती हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, तो डेफिनेटली लोग आगे आएंगे और टैक्स जमा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक क्लोजिंग राउंड रखते हैं, और सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट्स दें अपने अपने, इस बजट को कंक्लूड करते हैं।
मैंने पहले जो कहा उसके बाद में ये कहना चाहूँगा, आज एक तो साइनॉप्सिस निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वो भी आज शायद अब तक अपलोड हो चुकी होंगी, आ गई है ना। तो उसके बाद जो डिटेल बजट पढ़ने के बाद, जैसे मैं ये देख रहा था कि 7 लाख करोड़ का एमएसएमईज को जो है ईयरमार्क किया फंड, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ हमें नजर आएगी कुछ बेनिफिट, क्योंकि 90% राइस इंडस्ट्री जब 2020 में इसकी डेफिनेशन चेंज हुई थी, उसके बाद लगभग 90% राइस इंडस्ट्री एमएसएमई कैटेगरी में आती है, मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड। तो हो सकता है हमें उसमें कुछ बेनिफिट्स नजर आए, बट उसकी डिटेल स्टडी करना हमारे लिए आवश्यक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जो और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं सबसे पहले तो चाइना को ही कहीं ना कहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से तो चाइना से हम लोग बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर उनकी जीडीपी हम देखें, जीडीपी भी बहुत अच्छे लेवल पे हमारे से उनकी, उनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ आज चाइना के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हैं। तो वो क्या स्ट्रेटेजी ऐसी अपना रहे हैं कि आज मान लो ट्रम्प के टैरिफ से बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इम्पैक्ट हुई है, लेकिन चाइना उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर कोई पूरे वर्ल्ड में आज टक्कर दे रहा है ट्रम्प को, तो वो चाइना दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि ऐसे क्या उनके पास, क्योंकि भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, भारत के पास यूथ पॉपुलेशन की कमी नहीं है। यूथ पॉपुलेशन जो है भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जो भारत की पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन भारत की सबसे ज़्यादा है, करीब 38% जो है पूरी पॉपुलेशन का यूथ है भारत का। तो जो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिविडेंड हमें मिल सकता है, यूथ डिविडेंड, उसको हमें यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक जैसे कि बजट में भी हमें एक्सपेक्टेड था रेयर अर्थ मेटल्स, मतलब ये बेसिकली वो मेटल्स होते हैं कि जो हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मोटर होती है उसमें यूज़ होते हैं, ये REM कहते हैं इनको, रेयर अर्थ मेटल्स। सेमीकंडक्टर में यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइन में यूज़ होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं। तो अभी आप मान के देखो कि पूरे वर्ल्ड की जितनी रिक्वायरमेंट है इन मेटल्स की, उसका 75% चाइना प्रोवाइड कर रहा है आज। और भारत की बात करें तो करीब 7% 8% भारत प्रोवाइड करता है। अभी उन्होंने अपने एक्सपोर्ट में इस चीज़ को कमी डाल दी थी, अपने एक्सपोर्ट में इन्होंने एक्सपोर्ट कम कर दिया था इसका। तो भारत के पूरे डिफेंस सेक्टर में और पूरे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मच गई थी। तो ये बेसिकली जो है, ये सिर्फ इकोनॉमिक टॉपिक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक भी है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं उसमें भी चाइना जैसे देश की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आज एक चीज़ समझने की जरूरत है कि चाइना छोटी से छोटी चीज भारत के अंदर उस रेट में दे देता है जितना भारत के मैन्युफैक्चरर्स बनाने पर भी नहीं बना पाते। मतलब वो इतनी दूर से अपने देश से एक्सपोर्ट करके, उनका जो फ्रेट का सिस्टम है, जो एक्सपोर्ट करने का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो छोटी सी चीज को भारत के अंदर कम से कम रेट में प्रोवाइड कर देता है, और भारत का मैन्युफैक्चर उसी चीज को उस रेट में नहीं बना पा रहा है। तो हमें जरूर बिल्कुल इस चीज की हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश करें हम कैसे उसको बढ़ा पाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा। एक हेल्थ सेक्टर में भी हमें उम्मीद थी, क्योंकि जो आयुष्मान योजना है उसमें भी मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में भी इस बजट ने कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है। उम्मीद थी कि 70 जो एज है आयुष्मान भारत योजना की, उसमें 60 एज हो जाएगी, और जो 5 लाख का जो लिमिट है उसको 10 लाख तक हो जाएगी। लेकिन उसमें भी कोई भी मतलब इस तरीके का हेल्थ सेक्टर में भी कोई ज़्यादा बेनिफिट इस बजट से मिला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा। जी, थैंक यू। हेलो, इसके अंदर हम लोग को अगर कंक्लूड करना हो तो बजट तो ओवरऑल मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लेकिन जैसे सर ने बोला कि मतलब टैक्स तो आप चाहे ऊपर नीचे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेन तो है कि अपना जो हम लोग ने एक सिस्टम बना रखा है, चाहे एसएससी के लिए असेसमेंट के प्रोसीजर्स हो, चाहे चेन्नई को जो आउटफ्लो हो रहा है उसके लिए हो, लेकिन यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा अब स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जिससे कि बहुत ही ऐसा सिंपलाइज मैनर में अपना एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि जो मूवमेंट हो रही है आउटसाइड इंडिया जान रहे हैं लोग, वो अब ना जाए और इंडिया में रहकर इंडिया के लिए अर्न करें। इंडिया में रह के इंडिया के लिए अर्न करेंगे। अर्चना जी, मैं ये बजट के लिए, बजट तो जो लॉन्ग टर्म में तो कुछ अच्छा ही इफेक्ट आएगा, चाहे थोड़ा या ज़्यादा आना तो चाहिए और आएगा भी। लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है
वो जॉब की तरफ उनको मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे वो जॉब की तरफ ना भागे बल्कि जॉब क्रिएट करे, ना कि जॉब क्रिएटर बने, ना कि वो जॉब वो उसके गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज वेरी लिमिटेड। तो कुछ बजट में गवर्नमेंट को कुछ इसमें भी करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि जैसे प्रेम जी ने कहा ना कि अगर हम बिजनेसमैन को एक थोड़ा सा सांस लेने का हाँ। मौका देंगे तो वैसे ही वो जॉब्स तो क्रिएट कर ही रहा है। बिल्कुल। बस मेरी एक गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा करें ताकि HNI यहाँ से छोड़ के ना जाए। HNI एक नहीं जाता, कंट्री की HNI एक नहीं जाता, कंट्री की रेपुटेशन भी स्टेक पे लगती है। हमारी दूसरी जो FDI आनी वो भी बंद हो जाती है, वो भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए वो एटमोसफियर बने कि HNI नहीं जाए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे, ताकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये बजट में कंट्री को कैसे ग्रो करना चाहिए उसके बारे में जो रोड मैप रखा गया है वो बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि इस बार विकसित भारत का जो रोड मैप है उसके बारे में जो 7% ग्रोथ टारगेट है, 6.8 to 7.2% का जो उसके बीच में रखा गया है, विच इटसेल्फ इज वेरी बिग, क्योंकि आज के स्थिति में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो टैरिफ का इश्यूज हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा करना, उसके साथ इंक्लूसिवनेस की भी बात है। हर एक वर्ग में क्या क्या किया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर है या MSMEs हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। फाइन प्रिंट तो देखना होगा। 16 फाइनेंस कमीशन, उसकी बात जिक्र करना चाहूँगा। 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसका मतलब 41% जो ट्रांसफर होता है स्टेट्स को, उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो मैंने कहा एनर्जी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म, तो इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स के लिए क्या क्या किया जाए इस बजट में काफ़ी उसकी चर्चा है। और फिस्कल कंसोलिडेशन जो मैं कह रहा था, उसको भी हम लोग उसी पाथ पे चल रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बजट में कही गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि ये बात समझ में आ रही है कि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा हुआ था। सरकार ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अब हम हर बार समझते हैं कि और भी देते रहें, लेकिन ये भी समझना है कि फिर अगर बहुत ज़्यादा टैक्स अगर हम लोग चाहेंगे कि उसका बेनिफिट दे, तो फिर कलेक्शन कम होगा और फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें वो भी चाहिए। तो वो जो बैलेंस है वो सरकार की चेष्टा रहती है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग हर एक बजट में ही चाहते हैं, हर एक बजट जो है, बजट इज जस्ट वन ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच गवर्नमेंट हैज। और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो बजट का जिक्र नहीं, वहाँ AFS बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए हम लोग बजट, पहले जमाने में जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें बहुत ज़्यादा बजट के डे में ही सरकार से अपेक्षा रहती है। लेकिन अभी आप समझते हैं कि बजट के अलावा भी सरकार बहुत सारी घोषणाएं करते रहती हैं। उन सबको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल बनाया है। और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और ये रहेगा। इसके लिए जो रोड मैप है उस पर सरकार काम कर रही है। और इस बजट में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। जैसा मैंने कहा, फाइन प्रिंट देखना है। और ये सब देखते हुए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे का जो फ्यूचर है वो, उसके लिए सरकार जो है विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए काम कर रही है और उसका रोड मैप रखा गया है। जी सिन्हा साहब, ये ओवरऑल जो बात अभी आपने कहा, बात तो सही है कि कंट्री हैज टू बी ड्रिवन बाय द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा। एक मैन्युफैक्चर, एक बिग इंडस्ट्री, जैसे अभी अनाउंस किया था सत्य नडेला साहब ने कि $17 बिलियन का यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसी तरह से दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक चिप इंडस्ट्री आ रही है। एक इंडस्ट्रीज लैक्स ऑफ जॉब क्रिएशन होता है और कंट्री का डेवलपमेंट उसी से होगा। अब जो बजट आ रहा है, जैसे राजीव ने कहा ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ कंट्री विल हैव टू रिवर्ट बैक टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट द बजट. You have given enough. There is a limit to what the government can give you. The government has already given you enough. So far as tax is concerned, I don't think that any further concession is required to be given. No further concession is required to be given. All that you have to do is to consolidate and to facilitate the implementation with ease and let the people be treated with respect and without any hassle. That's all.
और उसी मैन्युफैक्चरिंग आएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, गवर्नमेंट इज डूइंग इट। मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ट्रीट कैसे करते हैं दोज हु आर कमिंग, ये करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं रही है। आफ्टर ऑल कंट्री इज वेरी बिग, एनी डिपार्टमेंट इज वेरी बिग, उसको कर तो रही है। हम तो ये भी देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। गवर्नमेंट वॉक्स लाइक एन एलिफेंट, वॉक्स लाइक एन, इट इज कंसिस्टेंट बट स्लो, कर रही है। कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग की तो देखिए, वी हैव टू बिकम लाइक चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसके लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू बी मेंटेन इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए अभी नहीं हो सकता है। अभी आप हमारा देव बैठा है बगल में, जहां आप अपनी बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएंगे तो 50 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो विल सूप डाउन ऑन यू और नहीं कर पाएंगे। हम लेदर के डायरेक्टर थे, राजीव और हम लोग थे वहाँ। इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर रफीक था। हम लेदर में बहुत इंसेंटिव लिया। मैंने रफीक को ही बुलाया, मैंने कहा कि रफीक हमको 10 टाइम्स बढ़ाना है, बोलो क्या करोगे? बोला नहीं कर सकते, आप मुझे फ्री में फैक्ट्री दीजिएगा चलाने को, फिर भी मैं नहीं चलाऊंगा। बात सही था उसका, आज भी है। तो वो आपको रोकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू हैव, इस कंट्री का जो पोटेंशियलिटीज है, द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विच इज देयर, नोवेयर यू फाइंड इन दिस थिंग, नोवेयर इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कहना पिन प्रिक्स खत्म करना होगा, यही है। स्मॉल थिंग्स इंटरवीन करके आपको खत्म करना होगा। कमिटी बनाना होगा, राजीव रंजन टाइप के ऑफिसर को लगाइए, हाँ, जो एक एक चीज और रिकमेंड करता है सीरियसली इंप्लीमेंट करिए, तभी होगा। आपका इंटेलिजेंस है यहाँ। आइडेंटिफाई योर गुड ऑफिसर, आइडेंटिफाई योर बैड ऑफिसर्स, आइडेंटिफाई। हमने किया हुआ ये चीज व्हाइल हेडिंग द इंटेलिजेंस इन बिहार। धनबाद माफिया का सर्च किया है, अपने ऑफिसर के बारे में पता है कि अच्छा ऑफिसर है कि उसको कहाँ देना है, खराब ऑफिसर कहाँ देना है। जब हम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है क्या? गवर्नमेंट को पता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी राजीव पोजेस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी अदर स्काउंड्रल्स पोजेस, लेकिन आप स्काउंड्रल को यूज करते हैं, तो करिए, तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल देव। देखिए, हर बजट में सरकार की कई लिमिटेशंस होती है। सरकार कई चीजें ऐसी करती है जो हमेशा हमारी अपेक्षाएं तो बहुत होती है कि सरकार ये दे वो दे, ऐसा करे वैसा करे, और वो अपेक्षाएं कभी पूरी हो नहीं सकती। पर इस बजट में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो शायद मिस आउट हुआ है, कि सरकार हमेशा बजट में एक रिलीफ के साथ एक मैसेज भी सेंड करती है दुनिया को। वो मैसेज ये होता है कि सरकार किन चीजों के बारे में सीरियस है, और अपनी कमिटमेंट सरकार शो करती है कि किस सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम कमिटेड हैं। थोड़ा सा जो अपेक्षाएं थी उसके रिस्पॉन्स में मार्केट ने अपना आक्रोश दिखाया है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ये फाइन प्रिंट के अंदर हमें अब इसकी अच्छे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, वो ढूंढने अगले साल ना पड़े, और जो भी इसके बेनिफिट्स है और जो भी सरकार मैसेज देना चाह रही थी वो बिल्कुल ऑन द फेस हो, अपेरेंट हो और क्लियर हो। क्योंकि अभी जो मैसेज मुझे मिलता हुआ नजर ये आ रहा है कि सरकार कुछ तो कर रही है, बट जो टारगेटेड अप्रोच हमें चाइना को या कोई और डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए, उस तरीके की टारगेटेड अप्रोच अभी तक मिसिंग है। पर हमारा जो प्रयास है वो चालू रहेगी। इसके ऊपर हम कोशिश करते रहेंगे, सरकार की तरफ रिप्रेजेंट करते रहेंगे कि जो चीजें मिस आउट हो गई है उसको इंक्लूड करा जाए। बिल्कुल, थैंक यू देव, और सभी एक्सपर्ट्स जो आज मौजूद रहे इस एनालिसिस रूम में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये बजट हमारा रहा, जिस तरह से कहा कि एक मिला जुला था, आगे आने वाले समय में इसके कुछ अच्छे इम्प्लीमेंटेशंस अगर होते हैं तो देखने को मिलेगा। तो जो सिन्हा साहब ने बात कही और हमारे राजीव रंजन जी ने बात कही कि सिर्फ और सिर्फ आइडिया से नहीं, उसको इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अगर हम कुछ भी ला रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, तो जब तक चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो गई तब तक काम नहीं चलेगा। यानी कि, और दूसरा जो प्रेम जी ने कहा कि भाई जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन
जो बिजनेस हाउस ज्यादा टैक्स देता है आप उसको कुछ तो सुविधा दीजिए, कुछ तो प्रिविलेज दीजिए। मतलब अगर आप 10 करोड़ रुपए का टैक्स दे रहे हैं तो भी वही जैसे कहा कि आपको लाइन में लग के जाना है, क्यू में ही लग के जाना है, तो उसको कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलेगा, उसे लगेगा कि हाँ मैंने अगर टैक्स पे किया है तो मेरे लिए कुछ अलग सरकार कर रही, सरकार सोच रही। क्योंकि आज की तारीख में भी देखिए बड़े सारे होटल्स की, बड़े सारे क्लब्स की लोग मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। मेंबरशिप क्यों लेते हैं? कुछ लोगों को अपना स्टेटस शो करना होता है। तो अगर सरकार भी स्टेटस के साथ देने लग जाए कि आप अगर इतना टैक्स दे रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो लोग बताना चाहते हैं, लोग अपना शो ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी मिल रही है। तो अगर वो सरकार सोचती है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम हो सकता है। और इसी तरह से अगर सरकार बिजनेसमैन को चोर ना समझ के उसको बिजनेसमैन समझे और ये समझे कि हमारे देश के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जॉब्स प्रोड्यूस कर रहा है, और जो जॉब्स प्रोड्यूस करता है उससे अल्टीमेटली इनकम जनरेट होती है, तो वो देशवासियों के लिए, सरकार के लिए और बिजनेस फैमिलीज के लिए, वो सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।